السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں جناب جنرل صاحب. یہ ایک بار پھر ایک مختلف اٹائر میں آج تشریف فرما ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کی شو میں شامل ہے حالات حاضرہ پر گفتگو کا سلسلہ بات چیت، سفرناک میں ضلع بہاول نگر، ٹمی آن لائن اور خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان جنرل صاحب کے ساتھ. یہ کیا بیماری بڑھتی جا رہی ہے. پنک پینتھر بن کے آگے آپ. یہ دیکھیں یہ آپ کیا آپ کو پتا ہے پنک پینتھر کا جو مین کیریکٹر ہے انسپیکٹر کروزو، وہ ایک سٹوپڈ کیریکٹر ہے، وہ ایک ایڈیٹ ہے. میری جان دنیا میں ایک جیمز بانڈ نام کی چیز بھی ہے. یہ میوزک جیمز بانڈ کا نہیں ہے. تو پھر کون سا؟ یہ پنک پینتھر کا میوزک ہے جو ایک بے وقوف احمق ہے. جو سارے ندی کے لیے جنتریاں مشہور نے. اتنے برے لگ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ روٹین میں بہت برے لگتے ہیں اس پوری قوم کو. اس اٹائر میں تو برداشت نہیں کریں گے. آفتاب میں تنگ آ گیا تھا بہت زیادہ. وہی ایک ہی گیٹ اپ، وہ ڈریگ ہو رہی تھی چیز. پھر میں نے سوچا کچھ چینج کرتا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ چلو پہلے یہ کر لیتے کہ کوئی فرینچ کٹ رکھ لیتا ہوں. پھر میرے دماغ میں آیا فرینچ کٹ رکھ لوں گا تو وہ JFC والا بابا لگوں گا. وہ لگے گا. پھر میں نے سوچا کہ کوئی دھوتی شوتی پہن کے آتا ہوں، لیکن کمانڈو آدمی ہوں، چھلانگیں مارنی ہوتی ہیں تو وہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے سوچا پھر جو توتی ہوتے کمانڈو تھلے. پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک ڈیٹیکٹیو بن کے آؤں. اچھا، کیونکہ دیکھو نا، مجھے اگر کوئی پوچھے گا میں کہوں گا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے آیا ہوں، یہاں پر بہت کرپشن ہے. آپ کو تو آنے ہی نہیں دیا جا رہا. آپ کو پتا ہے کہ آپ آ ہی نہیں سکتے. سر کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں، انہیں کسی نے نہیں آنے دینا اور پوری دنیا جانتی. پہلے مجھے ایک بات بتائیں، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے. یہ جو اتنی کرپشن کر رہے ہیں لوگ، اب کیوں نہیں آ رہے ہیں سڑکوں پہ؟ آئیں گے، ان قریب آئیں گے. میں نے خالی آئین نہیں توڑا تھا نا، کوئی ان کی گاڑیوں کا شیشہ تو نہیں توڑا تھا. آئین توڑنا آپ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں. لیکن یہ اس سے بڑے پاپی ہیں جو اس وقت موجود ہیں. آپ سارے کے سارے پاپی ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. جی جنرل صاحب، آپ کو کیا ہو گیا جب سے آپ نے پاکستان چھوڑا؟ آپ تو اتنے خوش لباس ہوا کرتے تھے اور آج کے گیٹ اپ میں یہ جو دو آپ نے ایک سن گلاسز لگائے ہیں، اسپیکس لگائے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ آہستہ آہستہ چیزاں بیک رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو مذاق شروع کر رکھا ہے کہ آ رہا ہوں ایک ڈیٹ دیتے ہیں اور پھر ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں قوم پاگل ہے، بے وقوف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھیں میرے بارے میں لوگوں نے اڑائی ہوئی ہے تو یہ ڈرتے ہیں، جیل سے ڈرتے ہیں. او بابا میں ڈرتا ہوا تھا کسی سے نہیں. تو پھر آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ او یار جیل کا ماحول برا ہے نا، کوئی چرس پہ لگا دے. پھر موجودہ سیاسی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ وہ مستقبل ہے ہی میرا، اور کس کا مستقبل ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں نا، موجودہ سچویشن کو آپ دیکھیں. مثلا یہ اس وقت عمران خان کا بڑا شور کر رہے ہیں لوگ. عمران خان کا کیا سین ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بڑا پاپولر لیڈر ہے وہ. کوئی پاپولر لیڈر نہیں ہے، بچہ ہے چھوٹا. اچھا، مجھے فون کر کے مجھ سے ٹپس لے رہا ہوتا، او جی مجھے کوئی گائیڈ لائن دے. گائیڈ لائن دی بجائے انہیں پپی دیتا ہے. وہ ایک پولیٹیکل موو تھا. آپ نے انہیں کتا تحفے میں دیا تھا ہاں جی. کہ بیچے اسی. آپ لوگ آپس میں کھیل رہے ہیں یا مجھے بات کرنے دیں؟ اچھا جی، اب بات کرنے دیں جنرل صاحب کو. یار آج کی سیاست میں ہے کیا آفتاب؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کچھ جلسے آج کل صرف میوزک شوز ہوتے ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے بھائی کے لیے؟ تو خاص طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، آپ تو خود پرفارمر ہیں. بڑا زبردست پرفارمر ہوں. اوپر سے نرگس بھی میرے ساتھ آئے گی جلسوں کے اندر. استغفار. کمبینیشن چیک کریں آپ، ہمیں تو کوئی بیٹ ہی نہیں کر سکتا. کیا پرفارمنس دیں گے آپ کے بھائی؟ واہ واہ. حکومت بنانے سے ہمیں روک کوئی نہیں سکتا. یہ جلسہ تسی محفل تھیٹر کرنا. جی جناب. السلام علیکم سر. آپ بہت اللہ کا شکر. آپ بال بچے سنا ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر. کاروبار ٹھیک ہے جی جی بڑے برا دا سنا. جی جی ٹھیک. یار ایک بات کریں نا، یا وہ کریں یا وہ. ساروں پھڑیا گیا سودا سے پوچھ لا آگے. سر ڈریسنگ آپ نے بہت اچھی کیا، ڈان 3 کے ہیرو لگ رہے ہیں آپ. تو آپ کی تعریف کی ہے اس نے. ڈان 3 بھائی جی کوڑا چکدا سی. کیا مطلب؟ سر آپ کی تعریف ہے یہ. ساروں اب بن رہی ہے نا. سارے ویلن ہوندے ہو جے کڑی چکن جاندے کھوتا چک کے لے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کہیں دبئی میں مہیش بھٹ کے ساتھ فلم تو نہیں سائن کر لی آپ نے؟ پہلے ڈیسائیڈ کر لو اس کا نام کیا. ہر گل تے لڑائی تسی جنرل صاحب ہو یا کمیٹیاں کھانا لپائی. یہ آپ نے کوٹ پہنا ہے، ہمیشہ شمیا کو تو نہیں کوٹ پہن کے آ گئے آپ؟ وہ انڈیا ڈھونڈ رہے ہیں کوٹ. نہیں پہن کے آ گیا میں. یہ کتنے مزے کی بات ہے نا. او مائی گاڈ، گھر جا کے بول رہا ہوگا میں نے ایسا سوال کیا ماما.
ओ सारा क्राउड लोट पोट हो गया। देखो कुम कुम दी अम्मी पागल हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सारे सलाम कर रहे हो, वलीमे पे आए हो। सर आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे? आपको जहाज में सीट नहीं मिल रही? आवाम बेकरार है मुझसे मिलने, सर आप क्यों नहीं आ जाते? अच्छा जी, एक मिनट रुकिए जरा। क्यों जी, आप बेकरार हैं इनसे मिलने के लिए? खुदा ना ख्वास्ता। उन्होंने खुदा ना खास्ता कहा है। मैं जानता हूँ इस तरह की लड़कियां, मैं आपको बताऊं। बस आप शुरू हो जाएं इस तरह। जब से उन्होंने खुदा ना खास्ता कह दिया है, तो बस अब आप इस तरह की लड़कियां पराठा पकाते हुए, अल्लाह अम्मी की जी कसम पराठा सड़ गया, पराठा नहीं पका रही, कोई और चीज पकाएंगी। मेहंदियों में बड़े शौक से गाने गा रही होती है, मेहंदी नी मेहंदी मेहंदी नी। और शादी में मेहंदी के बाद फिर पता क्या कह रही होती है? मजा तो बड़ा है, गला बैठ गया। देखना जिस दिन आपका भाई एयरपोर्ट पे उतरेगा, सबसे पहले यही करेंगे, You are our hero? Yes, of course. अस्तगफार। ਇਹ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੀਰੋ ਬਚ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੀਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵੇ ਹੀਰੋ ਕਿ ਹੋਈ ਲਿਆ ਦੇ। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। फिर वो ये मुझे छेड़ तो नहीं रहे? जनरल साहब आप हर बात पे नाचते हैं, वीना मलक को प्रमोट तो नहीं कर रहे आप? अच्छा, आपने भी वही नोट किया जो मैंने नोट किया। क्या? वो बिल्कुल चिलगोजा नहीं लग रहा, ये देखें इसको बहुत। अच्छा, एक सवाल मैं भी कर लूं? आप ये कहें कि जरा थोड़ी सा मैं भी जलील कर लूं? नहीं नहीं, आपका घर जो कुर्की हो रहा है, इनके वकला ने ख़वातीन हज़रात वकालतनामे वापस कर दिए हैं, इनको रिप्रेजेंट करने से इनकार कर दिया है। ये है लेवल इनकी पॉपुलैरिटी का। ये कब हुआ? आपको पता ही नहीं कि ये कब हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं पता। उन्होंने वकालतनामे वापस कर दिए हैं। तभी मैं कहूं मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अच्छा, एक बात बड़ी हैरान कुन है वैसे कि 164 रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स, जिनमें जनरल्स भी शामिल हैं, इनकी पार्टी में शामिल हो गए। क्या सोच के शामिल हुए? मेरा ख्याल तुसी सारे थोक च ले लेने। बेटे पावरे, ये पावरे डिमांड है आपके भाई। सर जी ये तो लगता है जर्नैलों का स्क्रैप सी पूरा ट्रक ही खरीद लिया। बेटा तेरी सोच है, सोने की कान थी जिसमें से मोटा मोटा सोना चुना है। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि जनरल साहब आपके साथ तो कोई है ही नहीं। 164 ये हो गए और 2-3 इधर से थे। चौधरी फवाद निकल गया, तो 170 लगा लें जी। सर जी बड़े पुराने लोग इन्होंने राबता करे। सिकंदर यूनानी ने फोन किया, मैं भी आवा। इन्होंने राजे पोरस ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं लानत भेजना तेरे ते। मैं लानत भेजदा तेरे ते। वल्ला भाई पटेल ने अपने गाने भेजे ने। और आप जी जरनैल साहब तुसी की कहंदे हो इस बारे च? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਰਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। और आपको पता है शेर शाह सूरी भी आ रहा है। शेर शाह सूरी कभी आपकी जमात में शामिल नहीं होगा, वो बड़ा बहादुर जर्नैल था। उसका मतलब ये कसूरी आ रहा है, कसूरी। शेर शाह कसूरी आ रहा है। कसूरी आ रहा हमारे जनरल साहब ने अच्छे काम किए हैं। डॉलर किधर था, रेट डॉलर का? तुसी भी जंग जुंग लड़ी के बार्डर ते दे गए धोंदे सो। पढ़ी लिखी बात करो यार, करना है तो हमारी पॉलिसी पे तनकीद करो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਝਾ ਦੇਣੀ। जरनल साहब ने सुबह सुबह नु फेंटी लाई जी। वो पुरानी बात है। उन्हें तो दही जुंगला मार दिया। देख रहे हैं आप, ये इसको किसने बताया? बात सुने, अगर वो जनरल थे तो ये हरकतें कैसे करते थे? मेरा स्टाफ अफसर था ना, शरारतें करता है तो ठीक है, करे ना। और मलाई बड़ी मोटी थी जी, वो उतारनी पड़ी। अंदर की बात है, बड़ी घटिया हरकत। अच्छा खैर, मैं एक बड़ी माजरत से कह रहा हूँ जनरल साहब, अपना तो आप वर्का ही फाड़ दें, किसी और की बात करें। बरका भी फाड़ दें और अपना कोट भी फाड़ दें। ये हेड पाया ये भी फाड़ दें। वो साहब मैं क्या सोच के आया था यार, यहाँ पर आके मैं अपनी कैंपेन करूंगा, बताऊंगा आपको कि मेरे माइंड में क्या है, मैं कौन सा पाकिस्तान चाहता हूँ। कौन सा पाकिस्तान बताएं सही? मतलब ये तो फिर जब आऊंगा तो फिर बताऊंगा ना। आ कब रहे हैं आप? बहुत जल्द, सर्दी ज्यादा है ना, ये थोड़ी कम हो जाए फिर आऊंगा। जर्नल हो गए मरासी। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब, मैंने आपसे सवाल ये पूछना था कि ISI के सरबराह का इंतखाब आर्मी चीफ करता है, जी जी, वजीर आजम क्यों नहीं? अब वजीर आजम, और बहुत सी चीजें हैं जो वजीर आजम को करनी चाहिए आइडियली स्पीकिंग, लेकिन बदनसीबी है कि वो नहीं करे, इसलिए कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना मजबूत नहीं हुआ, हमारा पॉलिटिकल कल्चर इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वो फैसले जो एक वजीर आजम ही को करने चाहिए वो अभी भी आर्मी चीफ करता है। प्राइम मिनिस्टर ने जब भी पल्ले से करने की कोशिश की है, वो मसाइल को दावत दी है, और हमारी तारीख में 2-3 मिसालें मौजूद हैं। रिसेंट पास्ट में बीबी ने शम्सुर रहमान कल्लू को, जनरल कल्लू को
उन्होंने DG-ISI लगाया था। और अगर आपको याद हो कि मिर्ज़ा असलम बेग ने किस तरह रिजेंटमेंट शो की थी और एक बैड ब्लड जिसका आगाज इसी से हुआ था और आखिरी वक्त तक वो रहा, और बीबी बेचारी 3 साल नहीं पूरे कर सकी, ये पहली स्टेंट की बात है। और फिर नवाज शरीफ जब इतना हैवी मैंडेट जो भुट्टो को नहीं मिला था वो लेकर आए, उन्होंने अपनी मर्जी से वो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को ISI का चीफ लगा दिया, और इस बात का इतना बुरा माना था मौसूफ ने, इन्होंने उनकी जान नहीं छोड़ी आखिरी वक्त तक। और ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है और अब तक तारीख का हिस्सा बन चुकी है, लोग जानते हैं कि तमाम सूबों के जो ISI हेड्स थे वो बराह रास्त इन्हें रिपोर्ट करते थे, अपने चीफ को यानी DG-ISI को बाईपास करते हुए। तो इसलिए इस वक्त भी जनरल पाशा जो हैं वो नॉमिनी जनरल कियानी के हैं और उन्हीं की मर्जी से उन्हें एक्सटेंशन भी मिली, और अब मार्च में उनका ये टेन्योर भी पूरा हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये हमारे जर्नैल जो है ना, ये बाय नेचर इताअत करने के लिए तैयार हैं। ये मेरा छोटा मोटा टूटा फूटा जाती तजुर्बा है, मेरा अपना मुशाहिदा है कि ये इताअत करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, कोई इस काबिल ही नहीं आता। आज की जो सूरत हाल है, फौज अगर टेक ओवर नहीं कर रही तो इसका ये मतलब है कि फौज आना चाहती भी नहीं है, फौज आ सकती भी नहीं है। तो फिर फौज को ऐसा बनकर दिखाइए कि फौज दिलो जान से, जब आपको सल्यूट कर रहा हो ना आर्मी चीफ, तो उसका सर फखर से बुलंद हो कि मैं एक लीडर को सल्यूट कर रहा हूं जो एक मैंडेट लेकर आया हुआ है और पाकिस्तान की खिदमत मेरे से ज्यादा कर रहा है। कर आप करप्शन रहे हो, टके टके के आपके ऊपर इल्जामात हो। 5000 मुख्तलिफ स्कैंडल्स हैं पिछले 4 साल में, 5000। मैं आपके हुस्न तलब की दाद देता हूं कि फिर आप किस मुंह से तवक्को करते हैं कि आर्मी आपकी इताअत करेगी। आप यकीन कीजिए कि जब जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था ना, आज से 4 साल पहले, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो गई थी, पूरी कौम के वो हीरो बन गए थे देखते ही देखते। मैंने जनरल मुशर्रफ के इंतहाई करीब, उस वक्त प्रेसिडेंट होते थे मौसूफ, अगर आपको याद हो, ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट, इनके इंतहाई करीबी कोलीग्स को जरदारी साहब के कसीदे कहते सुना हुआ है। अगर ये ट्रेंड जारी रहता तो जरदारी साहब तो अगले 20 साल आपके सदर रहते। सारे 5 साल मुक लेंदे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जे अगले 20 साल और है तो फिर असी नहीं जे रहना। मैं कह रहा हूं मुख्तलिफ सूरत हाल में वो जरदारी साहब जिन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, एडे खप्पे सर, सानू पूरा खपारे नहीं रहे, सानू खपाटा फड़ गए। जरदारी साहब के एडे एडे खप्पे पै गए। तो बस फिर करप्शन हुई ना, बैड गवर्नेंस है, बैड गवर्नमेंट है, करप्शन है। ਤੁਸੀਂ सर 15 साल होर दे रहे हो, 15 मिनट नहीं कट सकते होर। भाई आज की जो सूरत हाल है वो और है। 1 मिनट आफ्ताब, मैं यहाँ पे सोफे ठीक करने नहीं आया। कर लो ठीक हो, 200-400 बन ही जाएगा। जी जनाब। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर एक बड़े स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है, इस बात में किस हद तक सच्चाई है? ये बात तो अब सच्चाई या कोई डाउटफुल है ही नहीं। आपको पता है कि हुआ क्या है? जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का DG है, उसने मीडिया के सामने एतराफ़ किया है कि सन 2008 से ऑनवर्ड्स अब तक 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जाली एंट्रीज थी जो मंथली 1000 रुपए के हिसाब से हमसे वसूल करते रहे, नादरा की निशानदेही पर कि जनाब ये तो फेक एंट्रीज हैं, ये कौन लोग हैं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी अगेन गोस्ट्स, जिस तरह हमने कल के प्रोग्राम में डिस्कस किया था, गोस्ट्स हैं, जिस तरह गोस्ट स्कूल्स होते हैं, गोस्ट एम्प्लॉइज होते हैं, इस तरह ये गोस्ट बेनिफिशरीज थे 15 लाख जो लगातार इतनी देर तक ये पैसा वसूल करते रहे। अगर आप उसका हिसाब किताब करें तो ये 50 अरब रुपए बनते हैं अब तक, यानी 50 अरब रुपए। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि मुनासिब अगर स्क्रूटनी की जाती, अगर तहकीकात की जाती तो इतना नुकसान ना होता। लेकिन देखना यह है, सवाल यह है कि ये लोग जो इसके इंचार्ज थे, वो लोग जो जिम्मेदार थे, क्या उस वक्त सो रहे थे? ये फरजाना राजा इंचार्ज हैं इसकी, ये जवाब दे अगर देखा जाए तो वो हैं, क्योंकि ये 50 का 50 अरब रुपया उन लोगों के पास ही नहीं गया, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन की नजर हुआ है। असल क्राइम आपको जो इसमें नजर आएगा वो नेग्लिजेंस नहीं है, वो करप्शन है। और जब भी
खुदा ने चाहा इस मुल्क में एहतसाब का सूरज जब भी तुलू हुआ, ये 50 अरब ज़रूर डिस्कस होंगे और उन लोगों से जवाब ज़रूर तलब किया जाएगा जो इसके ज़िम्मेदार हैं। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, सफ़रनाक में आज हम चलेंगे जनूबी पंजाब के ज़िले बहावल नगर। तारीख की किताबों से पता चलता है कि सन 606 ईस्वी में बहावल नगर का इलाका सिंध की हदूद में शामिल था और उस वक्त सिंध पर चच खानदान की हुकूमत थी। राजा चच के मरने के बाद उसका भाई चंद्रबन सलाइज इक़्तिदार में आया और उसके बाद राजा दाहिर। लेकिन सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त फाश दी और देबल से लेकर मुल्तान तक इस्लामी परचम लहरा दिया। ये इलाका इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना और बहावल नगर, जो कि पहले ही सिंध की हदूद में शामिल था, ये भी इस्लामी सल्तनत में आ गया। लेकिन तारीख की यह सितम ज़रीफ़ी है कि मोहम्मद बिन कासिम को इंतहाई नामसाइद हालात में चंद सियासी साजिशों और वजूहात के तहत वापस बुला लिया गया और ये पूरा इलाका राजपूतों के कब्जे में आ गया। तारीख का पहिया यूं ही घूमता रहा और फिर सन 1398 में अमीर तैमूर ने जब दिल्ली पर हमला किया तो उसने इसी इलाके को, जहां अब बहावल नगर है, इसी इलाके को अपनी गुजरगाह बनाया। मजीद शवाहिद ये मिलते हैं कि अमीर तैमूर ने इसी इलाके में वाक़े कला कलोट में क़याम किया और फिर बीकानेर से होता हुआ दिल्ली तक गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अकबर जब एक मुहिम पे निकला तो उसने भी इसी कले में क़याम किया था। इस ज़िले की 5 तहसीलें हैं: बहावल नगर, मिंचनाबाद, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास और चिश्तियाँ। ज़िला बहावल नगर के अहम तारीखी मकामात में फरीद महल, सरदारगढ़, कला फूलड़ा, कला मीरगढ़, कला जामगढ़, वुल्लर, फतेहपुर, कला मुबारकपुर और कला बहावलगढ़ काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ के मशाहीर में इल्मी और अदबी शख्सियात ज़्यादा नुमायाँ हैं और उनमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे मकबूल मज़ाह निगार शफीकुर रहमान, ये उनकी जन्मभूमि है। फिर उर्दू गज़ल का एक बहुत बड़ा नाम ज़फ़र इकबाल, ये उनकी भी जन्मभूमि है। फिर एक साहब हैं फजल फरीद लालेका, ये भी बहावल नगर की एक आम शख्सियत हैं और इनका कमाल ये था, इन्होंने पूरे बर्रे सगीर की क्लासिकल मौसीकी गांव-गांव फिर के इकट्ठी की, एक शहर जाके इकट्ठी की और बहुत बड़ा खजाना है मौसीकी का जो इनकी मिल्कियत है। फिर इल्म फजल ही के हवाले से सलीम शहजाद एक साहब हैं जिन्होंने किताब लिखी है बहावल नगर के ऊपर। फिर आमिर सुहेल बहुत अच्छे शायर हैं। सादुल्ला शाह का ताल्लुक इसी ज़िले से है। सियासी शख्सियात में मैं समझता हूँ सबसे पहले नाम लिया जाएगा मलिक कासिम का, बड़ा मोतबर नाम है हमारी सियासत में। इनके बाद चौधरी अब्दुल गफूर हैं, मियाँ अब्दुस्तार लाले का, मंजूर मोहल, ये बड़े नाम हैं। अच्छा जी, यहाँ की मसनूआत जो हैं, दस्तकारियाँ, उनमें सरे फहरिस्त ठप्पे का काम है। फिर बड़ी दीदाजेब रंगों में बहुत खूबसूरत रेशमी और सूती लुंगियां दस्तयाब है। हकीम साहब लुंगी लाके फिरन है, पुलिस वाले ने फड़ लिया, लत्ता ना चरस बन्नी तार वड्डी 100 गिर के तो गोडे ने यार प्लीज कबाड़िया कहता देखी कभी? हाँ देखी है मैंने, उसे मुनक्का कहते हैं। सर कोई ऐसी चीज है जिहड़ी तुसी नहीं देखी? प्रोग्राम तुसी पंसारी दी दुकान ते कर दे। इतने पढ़े कहाँ से हैं? वक्त मिल गया, ये कुछ देखने से फुर्सत मिली आपको? मैं यही काम करता रहा हूँ, किसी पंसारियों के यहाँ चाहतियाँ मारते नहीं। जहाँ तक इस जिले की सौगातों का ताल्लुक है, यहाँ की तहसील फोर्ट अब्बास में एक फवारा चौक है जहाँ पर उस्ताद अताउल्लाह की एक दुकान है, जहाँ की बर्फ़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की चंद बेहतरीन मिठाइयों में से एक है। सर अताउल्लाह पहले गाने गांदा हुंदा सी, हुण बर्फी बनाउंदा। वो उस्ताद अताउल्लाह है। अच्छा, तो वो भी उस्ताद ही है। वो ईसा खेलवी है और ये ईसा मठियालवी नहीं, ये फोर्ट अब्बास से। सर बड़ी लम्बान बर्फी दा असां याद पर समझ गए। लेकिन इस बर्फी का कमाल यह है कि इसकी काशें, इसकी टुकड़ियां बहुत लंबी हैं
8-8 9-9 इंचेस की ये टुकड़ियां हैं। नॉर्मली इतनी बड़ी ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। हाँ काफी बड़ी। ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਬਰਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोबाइल खोलेंगे ना बर्फी वहां के एक्टर भी बड़ा अच्छा है, एडी बर्फी। एडी मर्फी है वो। और सर जी पहले एडी बर्फी थी जो इत्थे रहिंदा सी, जो बाहर गया फिर ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਐਡੀ ਮਰਫੀ, ਬਲਕਿ ਐਡੀ ਮਰਫੀ। ਸਾਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਬਰਫੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ। ਮੀਰ ਤਮੂਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਫੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਮਾਨ ਇੰਜਨ ਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ। लम्मी बर्फी किहो जी होगी वेखांगे यार। ਐਸੀ ਆਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੋਚਵਾਨਾ ਕੋ ਛਾਂਟੇ ਬਰਫੀ ਦੇ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, तकसीम से पहले बहावल नगर रियासत जोनागढ़ का हिस्सा था, लेकिन तकसीम के बाद यह बहावलपुर, रियासत बहावलपुर में जम कर लिया गया। इसका इब्तदाई नाम रोजावाली था। रोजावाली की वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है कि सराइकी जुबान में रोजा कहते हैं नील गाय को, और नील गाय की एटिमोलॉजी हमें ले जाती है नीली की तरफ। नीली दरिया सतलुज के मुख्तलिफ नाम हैं ये, जिनमें से एक हाकड़ा है, सरस्वती है, सतलज है और नीली। नीली इसे मकामी लोग कहा करते थे। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੀਲ ਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਜਰਾ ਧੁੱਪ ਪਈ ਤੇ ਨੀਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਯਾਰ ਨੀਲ ਗਾਏ ਤੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। मेरा नाम रख दो जलील गाय। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਏਡੀ ਮਨੂਸ ਗਾਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक जापानी माहिरीन ने दावा किया है कि उन्होंने सोचों को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने की टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है। सर चॉइस शुजात साहब ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੀਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ, ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੀਮਾ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ। ਫਜ਼ੂਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। और उतो फोन करके कहते रीमा ने मैंने गिफ्ट किया। इसका सोच के साथ क्या ताल्लुक? सारे सोच ही होंदी है ना। मैं अपनी सोच ना काम कर रहे हो नहीं सही रहा। सरदारी साहब सर भला की सोच रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे नवाज शरीफ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। गिलानी साहब सर सोच रहे होंगे मैं सोनू निगम का गला घुट दूंगा। क्यों? मैं आप गावांगा। आता फसलम ਨੂੰ मैं खट्टा पिया देना। हमें इसरे शमियां ਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ। ਉਹ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। इससे क्या? ਤੇ ਰੀਮਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मंसूर इजाज सोचता होगा कि जे मैं पाकिस्तान चला गया रहमान मलिक ने मैंने फड़ के ले जाना तो मेरी टेंड कर देनी। और लोगों ने कहना कित्थों कराई यू। सारियां एक्टरां ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਫਕਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਮੀਰਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੀਕ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਠੀਕ। आपको पता मैं क्या सोच रही हूँ? क्या? You know Afi? इधर ध्यान रखें। I know this is the retired journal, बल्कि एक्सपायर journal. You know Afi, your the program is the very dude. Thank you. I know this is the ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਹੀ। No Afi, I am the thinking, very powerful. What? Powerful what? Yes, I know. Who? Who? I am the jinn is chimney. And the Masi.
बाजी तो मुच्छा लग ला मर्दा ना भी इंग्लिश बोलनी होंगी। मेरी हर बात पे आप स्माइल क्यों करते रहते हैं? ये देखिए फिर खुल खिला के हंस रहे हैं। तू क्यों नहीं बोलता हमटी डमटी? मजा तो सारे इमरान खान का है। इमरान खान की सोच में मेरा ख्याल है नवाज शरीफ मुर्गा बना हुआ आ रहा हूँ और नवाज शरीफ की सोच में मैं मुर्गा बना हुआ आ रहा हूँ। ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਤਿਹਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ। ओ आई सी, अच्छा ये तो शुतुरमुर्ग का इशारा कर रहा ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਮੁਰਗੀ ਹੈ ਫੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੋਗਾ ਵਿਕਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਈਏ। शाह महमूद का क्या ताल्लुक है इससे? ਸਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਵਿਕਟ ਗਿੱਲੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥਰਡ ਮੈਨ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੈਚ ਫੜਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਛਤਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਊਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ। आमिल के कहने पर लाहौर की एक खातून चिड़ियाघर के हाथी को केले खिलाने पहुंच गई। आमिल ने कहा था कि हाथी को अपने हाथ से केले खिलाओगी तो अमेरिका का वीजा मिल जाएगा। ओ भाई हाँ ओ माई नु की आई है? ओ भाई ओए मैं नजूमी आ, कामल आ, अमल आ, किसे छिपियां देन दिया मैं रखी वाला वां। तुसी भी वीजा लोना, तुसी भी केले फड़ो। अच्छा ये साडा कहने लग पड़ते हैं, अपने लिए सीगा जमा इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्ग बन जाते हैं ना। आप कहाँ के बुजुर्ग हो? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਮੁਕੱਦਣਾ ਵਾਲਾ 5000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੈ 5000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜ ਦਈਏ? ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एक खबर के मुताबिक हॉलीवुड में पहली बार फिल्मों और टीवी प्रोग्राम्स में अदाकारी करने वाले कुत्तों के लिए अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। सर कुत्तों ने हमारी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है। अब बोल फिल्म जो शफकत चीमे वाला कुत्ता इतना स्लो सी माना फिल्म हो गई, उत्थे ही बैठा। वैसे वाकई उस कुत्ते ने क्या काम क्या किया? ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਗਿਆ। शफकत चीमे तो बहुत ही रोटी खादी जी उस कुत्ते ने। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਟੀਮੀ। अच्छा ये टिम्मी का जिक्र ना करो, टिम्मी मेरा दोस्त है। पूछ ले ਉਹਦੀ। नहीं हैगी तो फिर ਹੁਣ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਬੂਲੀ ਕੁੱਤੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਅੜੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ। ਚੌਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਪੀਂਦੇ। ਸ਼ਰਦਾਈ ਆਓ। ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਾ ਖਾ ਕੇ ਨੂੰ ਬਸ ਲੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸਰ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਚੋਰ ਏ ਕੌਣ ਮੁਸਾਫਰ ਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਾਹਲ ਕੁੱਤੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਆ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੱਛੀ ਰੱਖੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣਗੇ, ਕੁੱਤਾ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਉਹ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਨਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ, ਕੁੱਤਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮਕੈਨਿਕ। हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एजाज भट्ट ने कहा है कि मेरे दौर के इकदामात के नताइज अब सामने आ रहे हैं। वाह वाह वाह, ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ख़ुद हज़रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं एजाज भट्ट की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहब इकबाल की हाल है? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मुझको बुलाते ही नहीं हो अपने शो में यार, भूल ही गए हो तुम। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਸਾਡਾ ਸੋਫਾ ਖਾ ਗਏ। बकवास बकवास से इतनाब करें प्लीज जी। आफ्ताब अच्छा ये आपने क्या बात की है कि क्रिकेट में जो मेरी इस्लाहात थी, जो मेरे इकदामात थे, उनके नताइज
अब सामने आ रहे हैं। टीम आपके जाते ही अपने पैरों पे खड़ी होगी, आपने अंदाजा किया इससे? ना ये ना करें ना, ये थोड़ी सी जाति वाली बात हो गई है। तो मैं जिस वक्त इनका इंचार्ज था ना, उस वक्त जो स्टेप्स मैंने लिए तो उसका ये फल है आज जो ये ज़का अशरफ खा रहा है, ये गमले का मुंह वाला। वो भी खा रहे हैं। नहीं नहीं, ज़का अशरफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने आते ही साबित कर दिया। जी, मेरे आइडियल इजाज भट्ट है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, मुझे उनकी बहुत सी पॉलिसीज अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह, खुराक वाली। भाई उसने अपनी रेफरेंस का इजहार किया है। एजाज भट्ट के चाहने वाले भी हैं दुनिया में। इजाज भट्ट की रोटी ये लेके आउंदा ते एनी क्यों ना तक पहुंचती, बाकी आप खा जाना। यार नफीस बच्चा ना करो इस तरह। एडा नफीस सर, जिस बेंच ते बैठा है उस बेंच ते डेले बाहर आए। वो दुआवां मांग रहे, या अल्लाह कदों उठेगा। ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਸੋਫੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। सबसे ज्यादा स्माइली फेस है उसका। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਹੋਏਗਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਗਚੀ ਜੀ ਪਾਇਆ, ਚਿੰਗਚੀ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਚਿੰਗਚੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। यार दोस्त जाते रहे ना नहर दे उत्ते, ते ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੋਸਤ, ट्यूब ਦੀ ट्यूब। ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੁਝे भाई खाने लगा है। यार कितना देखो प्यारा और बुर्दबार बच्चा है, स्माइल कर रहा है। ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। खबर है कि शकरगढ़ में किसान के खेत में 26 किलोग्राम का शलजम उगाया। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਖਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲੂਕੋਸ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। 26 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਜਮ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ, और फिर कटिया नहीं गया। ਆਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਸ਼ਲਜਮ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। 3 ਸੋਫੇ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, 2 ਮੂੜੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਢੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਂਗਲੂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਿਹਾ। 26 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੋਂਗਲੂ ਯਾਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੇ ਲਈਏ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਉੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੇਰੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से एक अमरीकी ज़हनी इमराज में मुब्तला है। वाह जी वाह, यानी उत्थे पागल ही फिरन रहे ने सारे। यार पागल समझने की कोशिश किया करो कि 5 में से एक बंदा वो किसी ना किसी ज़हनी मरज में मुब्तला है। इसका ये मतलब नहीं कि वो पागल है, ये कोई छोटा मोटा डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सर 10 अमरीकी आए सन, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੇਵਕੂਫਾ ਦੀ ਪਾਗਲ। अच्छा तो ये तुम लोग अमरीकी हो? हाँ जी, और ये हमारी नानी है। और असी पाकिस्तान नानी दबना है। तो लगता चोरी सुधार ना मंगी रही। अच्छा अमेरिका में क्या करती हैं? बैरी जहाज वेल्ड करती है। वो बड़े जहाज वेल्ड नहीं करती, ਜਿਹੜੇ ਟੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪੇਟ ਪੇਟ ਪੇਟ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਬਲੈਕ ਹਾਊਸ। ਨਾਨੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਨਾ ਬੜੀ ਫਰੈਂਕ ਹੈਗੀ। वो कैसे? ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਨਾਨੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਤੜਪ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। वो कैसे? ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਗੇਅਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤੇ। यार ये क्या फजूल बात है? ਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਡੁਬੋਣਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਇਸਬਰਗ ਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੇਅਰ ਕੱਢਿਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਐਡਾ ਮੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਨਾਨੀ ਬਚੀ ਬਸ। तो नानी बच कैसे गई? ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹਨ। अच्छा तो ये टाइटैनिक में करती क्या थी? ਇਹ ਪਜਾਮੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀ।
नए नहीं अपने वाले सर जहाज च पानी आया ने सलवार च हवा भर ले अपने नहीं किसी दी सर उधरों जहाज डुबन डया सी ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਤੇ ਖਿਚਾ ਦੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर